मेडिसिन के लिए इसी के लिए ठंडा रखने के लिए तो हम इसकी क्या कुछ बोल दे रहे हैं बोलो बेटा ये हमारी फोटो आ रही है। Introduced already in 1970, it took about 40 years becoming popular and it used for groundwater pumping. What are the main benefits of solar water pumping? What geared them popularly? Like we will use in agriculture by using groundwater for irrigation in the farms. We use solar panel to use solar energy to convert into electric energy and use them in fields. स्टार्टिंग इंग्लिश में बाकी हिंदी में अपने आप This type of farming method is used land which is used in the slopes of hills Explain. Good morning, my name is Sanu. My name is Diksha. We are from 9th class. Today we made our model on solar water heater. So you can see this black pipe. This absorbs heat from sun and make cold water into hot water with the help of sunlight. Sunlight is very important for our living on the earth. आपका शुभ नाम? My name is Diksha. आपने क्या बनाया है? एक ब्रिक और लगानी पड़ेगी तभी पानी ये सर ऐसे इसका प्रेशर आप एक्सप्लेन कौन करेगा? I am Vaishnavi.
my name is We deliver a model on source of energy. This is our model. First of all, wind turbines work on a simple principle instead of using electricity. Wind turns the propeller around the rotor, which spins generator, which creates electricity. Wind turbines turn the wind energy into electricity using aerodynamic force from the rotator blades. These blades work like an airplane, wind, helicopter or rotator blades. Air pressure is the one of the size which increase blade is the difference in air pressure. जी A wonderful morning to all of you. My name is Anshika and I am from 6th standard. Today we have a model of step farming. Step farming and terrace farming are commonly done in the slope of hill. These are cut into mountains and hills to make steps. This is step farming. जी Respected principals, sir, teachers, parents, chief guests, and all of you. A wonderful morning to all present here. I am Sakshi from class 8 and today I am here to tell you about our project and that has designed by me and my all team members. As you can see this. Here you can see this flyover is here. Flyover. A flyover is an formation of aircraft in flights for observation from the ground. And it has 4 traffic lights. As you can see this, ये हमारा traffic lights करने में help करता है. और यहाँ, as you can see this, there is lights. They help us. If there are no lights, there are many chances for accident. आप देख सकते हैं अगर यहाँ लाइट्स नहीं होंगी तो एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होंगे एट नाइट. बट here are lights, so there are no chances for accident. Wonderful morning, respected teachers and my dear friends. I am Anshika from 8th class. As Sakshi telling what is flyover, I am telling you about the parts of flyover. It consists of deck, slab, longitudinal girders, overpass and underpass for the vehicles. There are lights. The root purpose of the lighting is to assist the drivers in finding their way. These lights do not produce any type of pollution because we connect them with the solar plates. Now Sania tell you about how we construct the flyover. A wonderful morning to all of you. I am Sania from 8th standard. Today I am going to tell about its construct and intersection. Construct a place of the lower part of the foundations like solar panels, etc. Within the suspensions or the ground is formed as the used. Then we can place steel or precast grinders or base grinders, etc. Intersection are grade separated structures that diverts and clears through traffic. प्लांट्स और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं. ये प्रोडक्ट जो ये एक हफ्ते के बाद तैयार होगा, इसलिए हमें छाननी डाल के या फिर ड्रिप इरिगेशन से डाल दें. उससे पहले से हमें छानना होगा. अगर हमें बिना छाने इसको डाल दें तो पाइप से ब्लॉक कर सकते हैं. Principal sir, teachers, honorable chief guest, a pleasant morning to all of you. I am Khushi. I am Nidhi from 8th standard. क्या है आपका प्रोजेक्ट? Drip irrigation. This is drip irrigation. Drip irrigation is a method of बस शुरू से बोलो सब. drip the plants. My project is on solar panel. How the solar panel works? This is a solar panel. Absorb the sunlight and make electricity. This electricity go in the pump, which pump the groundwater. The groundwater is used for irrigate the plants. This is क्या नाम आपका? Ronit. क्या है ये प्रोजेक्ट और क्या लाभ है इसके? Ayurvedic medicines. This is ginger. It's reduce inflammation. This is turmeric. It's glow the skin. It's help in arthritis. This is filet. It's helps with the digestion. It's control the sugar. This is black pepper. It's help with digestion. And it helps. My morning
मैं बोलूँगा जी। क्या प्रोजेक्ट है ये, क्या लाभ है इसके? Rainwater harvesting. The rainwater is collected in first tank, then the rainwater is gone second tank, then we do with this water irrigation, many purpose like that, washing clothes, watering plant like that. क्या नाम है आपका? खुशी. नहीं मैडम ने फिर स्टार्टिंग साथ में कर वाटर हमारे मुंह से काम आता है लाइक फर्स्ट एंड कलेक्ट वाटर इन द लैंड देन वाटर इज वेस्ट टैंक सेटिंग देन we do many things with this water. We like that अरे कमाल है यार, बताओ आपका नाम? अरे दीदी आपका नाम पूछ रहे। अपने साल मुबारक हो। शुरू करो। ये अभी सेवा दे रहेंगे। What's your name? What's your name? आपका नाम? नहीं ठीक है, बस आप थोड़ा सा है ना घर पे देखो, रिविजन किया नहीं, बाकी हमारे। थैंक यू मैम। शुरू करो ना रोज कुछ बस मैं वही पूछ रहा हूँ, कोई कंपल्शन नहीं है कि हाँ करना है तो करना चाहिए, हाँ बच्चों को ही इंटरेस्ट, बच्चों के लिए क्या समझ लिया है क्या? 6 लाइन का क्वेश्चन होगा, उसकी एक लाइन याद करो, ठीक है? एक लाइन याद होगी। दोनों की करवाए। ओके सर। सर ये वर्मी कंपोस्ट जो हम बनाते हैं उसके लिए पैदा आई है जिसमें कि हमारा जो गोबर होगा वो जैसे होगा, उसके बाद हम उसको उनको ऐड करेंगे, जो अनयूज हो गए हैं उनको फिर हम इसमें ऐड करेंगे, वो इसको अवॉइड
अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन लगाया है और मोस्ट उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने दिया है वो हमारा एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने दिया है। आजकल हम अपनी खेती बाड़ी में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं और वो सारा का सारा जहर हमारे अंदर आता है। सबसे ज़्यादा हम ह्यूमन बींग्स के अंदर इस टाइम प्लास्टिक और सबसे ज़्यादा जहर हमारे अंदर प्रेजेंट है। तो उस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि हमें इतनी सारी बीमारियां हो रही है, कैंसर हमें हो रहा है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। उस चीज़ को हमें ही रोकना है, तो उसको हम ना ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना के उसको रोक सकते हैं। हमारे पास वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल हो सकता है, वर्मी वॉश को हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें ज़ीरो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, कोई केमिकल्स उसके अंदर नहीं है और उससे हमारे प्लांट्स को बेनिफिट होता है, हमारी जो लैंड है उसको बेनिफिट होता है और टोटली हमारी बॉडी को बेनिफिट होता है और इसी से हमारे जो बच्चे हैं वो आगे फिजिकली फिट होते हैं और अपने करियर को फुलफिश कर सकते हैं। स्कूल में हम ये एग्जीबिशन लगाने का पर्पज़ यही है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सारी जो हैं हमारी फसलें और केमिकल से ज़्यादा मतलब फसलें भी हैं, जो भी वेजिटेबल वगैरह जो भी हम डेली यूज़ में करते हैं केमिकल से युक्त है हर कुछ। और जिससे क्या है हम देख भी रहे हैं कि मतलब छोटे छोटे बच्चे भी इतनी ज़्यादा बीमारियों से ज़्यादा आजकल हम देखते हैं कि हॉस्पिटल भरे हुए हैं। कोई ना कोई घर में ऐसा है ही नहीं कि जो बीमार ना हो। वो सारा हम लगाते हैं, कुछ तो एनवायरनमेंट का हो गया है हमारा, कुछ हमारे ये जो केमिकल से फर्टिलाइज़र से जो हमारी वेजिटेबल्स है, खान पान आप ये समझ लीजिए इस तरह का हो गया है। इसलिए अब दोबारा हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि जो भी हमारे पास एक तो क्या होता है कि ये जो चीज़ें हमारे पास जो किसान हैं कॉस्ट कम पड़ती हैं उन चीज़ों की, एक कॉस्ट ज़्यादा ये कहते हैं ना कम कीमत में ज़्यादा फ़ायदा। तो इसलिए जब हम ये संदेश बच्चों में डालते हैं तभी वो अपने घर में आसपास में चीज़ों को देखेंगे और यहाँ से सीख कर जाएंगे, तभी वो आगे फ्यूचर में भी इसको यूज़ करेंगे सर और हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। मैं हूँ निशा, मैं जींद से हूँ और मैं ये समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो हमारा साइंस एग्जीबिशन है ये हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर है कि हमारा इन्वायरमेंट हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हमें स्वच्छ रखना चाहिए। एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, सैंड पोल्यूशन है, इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए। और ऑर्गेनिक फार्मिंग है हमारा टॉपिक साइंस एग्जीबिशन का, और भी हैं जो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर को लेके। तो उसमें क्या है, जैसे किसानों को मोटिवेट किया जाएगा कि आप नए नए जो एग्रीकल्चर के वेज हैं उनको अपनाओ, उससे हम लोगों को बचत भी बहुत होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है। तो यहाँ पे जो हमारे मॉडल एग्जीबिशन साइंस एग्जीबिशन आज चल रहा है उसका मेन पर्पस जो है वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। और यहाँ पे जो हमारे मॉडल्स हैं वो वाटर हार्वेस्टिंग पे हैं, रेन वाटर पे, ड्रिप इरिगेशन पे है। वो बताया गया है कि हम कैसे छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके और हम अपने जो मार्केट है मार्केटिंग को भी बढ़ा सकते हैं और मेन चीज़ क्या है टाइम को भी बचा सकते हैं, वाटर को भी सेव कर सकते हैं और बहुत ही अलग अलग नई नई पॉलिसीज़ यहाँ पे अप्लाई की जा रही हैं। बहुत ही उत्साहित हैं। उनको कृषि के बारे में, जैसे आजकल का माहौल ऐसा हो रखा है कि जैसे हम बच्चों को कृषि से बहुत दूर रख रहे हैं, तो इन चीज़ों से सभी को पता चलेगा कि भाई कृषि हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं इस चीज़ से कि उनको कृषि के हर पहलू के बारे में पता चल रहा है। और ये एग्जीबिशन से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष के अंदर कृषि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर जैसे उद्योग बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, अगर ऐसे ही चलते रहे तो कृषि ना होने के कारण काफ़ी नुकसान हो सकता है आगे के। इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, एग्रीकल्चर के बारे में है, सोलर से एनर्जी कैसे इसको यूज किया जा सकता है। सोलर काफ़ी मतलब ये तो लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं और बहुत लो कॉस्ट में सोलर एनर्जी को यूज किया जा सकता है। इसे सीख रहे हैं बच्चे। और कुछ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके बारे में भी बच्चे बहुत अच्छी सी नॉलेज जो है वो ले रहे हैं कि किस तरह से एक आजकल बगैर फर्टिलाइज़र के, बिना किसी पेस्टिसाइड्स के कैसे भी एक अच्छी क्रॉप्स जो है वो ले सकते हैं, अच्छी यील्ड उसमें अच्छा उपज जो है वो ली जा सकती है बिना फर्टिलाइज़र के भी और बगैर पेस्टिसाइड के यूज के बगैर भी। जो आज का साइंस एग्जीबिशन है
इसमें जो है ज़्यादातर फार्मिंग से रिलेटेड मॉडल्स बने हुए हैं। इसमें आज जो बीमारियां हैं हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलती हैं, जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है और बहुत सी बीमारियां हैं। ये हम मेडिसिन लेते रहते हैं लेकिन उसको हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए आराम आ जाता है। लेकिन यदि किसानों को मैसेज दिया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, यदि हम किसानों को इन बच्चों के माध्यम से ये मैसेज दिलाने में सफल हो जाते हैं कि हमें रसायन वगैरह चीज़ों को छोड़कर ऑर्गेनिक जैविक खेती पर आए, तो जैसा हम भोजन लेंगे खाएंगे वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा। तो हम जो इतने बीमारियों पर खर्चा होता है पूरे समाज का, उसको हम बचा सकते हैं और स्वास्थ्य है जो वो हमारा स्वस्थ रह सकता है। इस तरह की एक्टिविटी से जो बच्चों में प्रतिभा विकसित होती है वो भी एक अलग ही, उस पर क्या संदेश रहेगा? हाँ, यदि हम शुरू से ही स्कूल समय से ही बच्चों को यदि इस तरह की चीज़ों को बताएंगे या उनको अच्छे से सिखाएंगे तो वो अपने पेरेंट्स को जाकर भी इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में 80% पेरेंट्स हैं जो इस संस्था में है वो फार्मर ही हैं। तो उनको ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। हमें आज नहीं तो कल ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आना पड़ेगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसानों का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इससे फसल के दाम हैं जो वो 1.5 गुना तक एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये जो आज का एग्जीबिशन का प्रोग्राम है जो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में बच्चों ने यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगाई हुई है, इससे क्योंकि आज के वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है ऑर्गेनिक खेती और नेचुरल खेती, जिससे समाज में किसानों को केमिकल वाली जो खेती थी उससे बड़ा लॉस हो रहा था, नुकसान हो रहा था, बीमारियां हो रही थी, इनपुट्स खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे थे। और जो ऑर्गेनिक खेती है इससे खर्चे बहुत कम हो जाएंगे और किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा इससे, और समाज के लिए भी एक शुद्ध स्वच्छ भोजन मिल पाएगा।